Today we are going to start with the chapter 2, real numbers for algebra. Before starting with the chapter, we will revise some basics. We know the types of the numbers. First is the natural number. It's a set of the numbers which starts from 1, 2, 3 and up to so on. Second is set of whole numbers which starts from 0, 1, 2, 3, 4 and up to so on. Next one is set of integers which includes all negative integers, all positive integers including 0. Next is set of rational number which contains set of numbers of the form p upon q, where p and q belongs to integers and q is not equals to 0. Next is set of real numbers which includes all these sets. That means it contains natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers. Now here we can conclude that natural number is a subset of whole numbers. Whole number is a subset of integers. Integer is a subset of rational number and rational number is a subset of real number. Up till now that we have studied in the previous standard. Now next we are going to use order relation on rational numbers. Order relation on rational numbers. Suppose I have two fractions p upon q and r upon s are rational numbers in which q is greater than 0 and s is greater than 0. That means the denominator is greater than 0. Then first property we have, if p multiplied by s is equals to r multiplied by q, then p upon q is equals to r upon s. If I have these two fractions p upon q and r upon s, then if this cross multiplication is equals to this cross multiplication, then both the fractions are going to be equal. Second one we have, if p into s is greater than r into q, then p upon q is greater than r upon s. This is the second property. And the third one, if p multiplied by s is less than r multiplied by q, then p upon q is less than r upon s. These properties we already learned. Now next we have to learn properties of rational numbers. Properties of rational numbers. Now which are those properties? So the property, first one, property first is cumulative property. This property applies for the addition of rational numbers and also multiplication of rational numbers. So this property tells us that if I have two rational numbers, three rational numbers a, b and c. If I have three rational numbers a, b, c, then cumulative property for addition indicates that a plus b is equals to b plus a. That means in addition, the order of the rational number doesn't matter. It will give me a same answer. Next, the property for multiplication is same. A into b is equals to b into a. Order doesn't matter. Second one property, associative.
Second one is associative property, and the associative property for addition is, if I add two rational numbers plus c, that is a plus b plus c is equals to a plus into bracket b plus c. That means whichever addition we do first, we will get always same answer. Same property applies for the multiplication. A multiplied by b into c is always equals to a into b multiplied by c. Third property, identity. Identity property for addition is, a plus 0 is always equals to 0 plus a, which is equals to a. A plus 0 is equals to 0 plus a, which is equals to a. And here 0 is the additive identity. 0 is what? Additive identity. Why it is called as additive identity? Because 0 में कौन सा भी number add कर दो, it will give me the same answer. 2 plus 0 is equals to 2 only. That means 0 में अगर whichever number we add, we get the same answer. And the multiplication property is, a multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by a, which equals to a. And here 1 is the multiplicative identity. Multiplicative identity. Why here 1 is the multiplicative identity? Because कौन से भी नंबर के साथ if we multiply 1, we get the same answer. 2 into 1 is the 2 only. And the last one property we have, inverse. Property for addition is, a plus minus a is equals to 0. That means if I add a number which are inverse of or opposite of each other, then always equals to answer 0. Or else multiplication property is, a multiplied by its inverse, that is 1 upon a, answer will give me 1. 0 is the identity, 1 is also multiplicative identity. मतलब यहाँ पे if I add both opposite numbers, then answer will give me always 0, that is gives me identity. And if I multiply two numbers with reciprocal, then answer will always multiplicative identity. These are the 4 properties of rational numbers. Now next we are going to learn decimal form of any rational number. Now we all know that decimal form of any rational number is either terminating or it is non-terminating. It is either terminating or it is नॉन टर्मिनेटिंग. ये 2 टाइप हम लोग ने ऑलरेडी देखे थे. उसके एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/5. लेट अस डिवाइड 2 by 5. पहले तो यहाँ पे 0 आएगा, सो रिमाइंडर 0, पॉइंट आएगा, देन 0 ऐड होगा, देन 5 4 ज़ा 20, the answer we get 0. रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू डिवाइड फर्दर. सो 0.4 यहाँ पे डिवीजन हम लोग को मिला, जहाँ पे कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है. द प्रोसेस डिवीजन इज स्टॉप. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग टाइप. ये जो डेसिमल फॉर्म है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड वन 17/36. So if you divide 17 by 36, you will get answer 0.7222, and 2 is repeated over here. That means what? We can write 0.7472 and dot over here. Why dot? Because 2 is repeated. And this type of decimal form is called as non-terminating. Why it is called as non-terminating? Because it will never terminate. यहाँ पे 2 always repeated होते जाएगा. That's why it is called as non-terminating. These 2 types of decimal forms we already learned. First one is terminating, second one is non-terminating. Now next that we are going to learn is to express
the recurring decimal in P upon Q form. If we have recurring decimal form, सो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे. सपोज आई हैव वन रिकरिंग फॉर्म दैट इज़ 0.777 एंड यहाँ पे 7 रिपीटेड है. दैट मीन्स व्हाट इज़ द रिकरिंग फॉर्म. रिकरिंग मीन्स व्हाट, टर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, जो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है. दैट्स कॉल्ड द रिकरिंग. रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट्स कॉल्ड रिकरिंग. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है 0.7777. नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू P अपॉन Q फॉर्म. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, व्हाट एग्जाम्पल वी हैव, 0.777 विच इज़ कंटिन्यूइंग. दैट इज वी कैन राइट 0.7 एंड यहाँ पे डॉट है ना. वाई? बिकॉज 7 इज रिपीटेड. So let us assume 0.7 dot is equals to x. क्या करेंगे, 0.7 जो है that is recurring form, that is equals to x. Now next हम लोग को क्या करना है, let us multiply 10 on both the sides. क्या करेंगे, multiply 10 on both the sides. Multiply by 10 on both sides. ठीक है. So if I multiply 0.777 up to this into 10, so मुझे आंसर क्या मिलेगा, 7.7777 है ना. मल्टीप्लाई बाय 10 है मतलब डेसिमल फॉर्म में एक प्लेस आगे जाएगा. ओके, so यहाँ पे द आंसर वी गेट 7.7 डॉट बिकॉज अगेन 7 इज रिपीटेड. यहाँ पे वी गेट 10x बिकॉज वी मल्टीप्लाई बाय 10. क्लियर अप टिल नाउ. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो यहाँ पे लेट अस गिव योर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. That means what, 7.7 dot minus, ये इक्वेशन 1 है, 0.7 dot which is equals to 10x minus x. 10x minus x. What is the answer we get? अगर मेरे पास यहाँ पे 7.7 डॉट है माइनस 0.7 डॉट है, तो द आंसर वी गेट 7 ओनली, है ना. बिकॉज ये जो है 7 रिपीटेड, यहाँ पे भी 7 रिपीटेड, ये उसका जो सब्ट्रैक्शन है वी गेट 0. सो यहाँ पे आंसर ओनली वी गेट 7 एंड 10x माइनस एक्स विल बी 9x. अभी हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो है ना. सो लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, तो 7 अपॉन 9. मतलब यहाँ पे जो हम लोग ने 0.7 रिपीटेड था उसको एज एक्स कंसिडर किया था, मतलब जो P अपॉन Q फॉर्म में हम लोग ने x कंसिडर किया था, उसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला, 7 अपॉन 9. ओके, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि वाई आई हैव टेकन 10 ओनली ओवर हियर. मतलब यहाँ पे मैंने 10 ही क्यों लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 ही क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे ओनली 1 डिजिट रिपीटेड है. यहाँ पे ओनली 1 डिजिट इज़ रिपीटेड, दैट्स वाई आई हैव टेकन 10. अगर वहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीटेड होते, कितने, 2 डिजिट्स, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया होगा. इफ़ 3 डिजिट्स रिपीटेड देन मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा, एंड सो ऑन. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड करके वी हैव टू मल्टीप्लाई. लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.1. प्रैक्टिस सेट 2.1. इसमें भी हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल सीखने को मिलेंगे, तो हम लोग वो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. मतलब दे हैव गिवन some rational numbers and we have to verify whether it is terminating or non-terminating.
सो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 13/5. सो लेट अस वेरीफाई. क्या करना होगा, 13 को डिवाइड करना होगा बाय 5 से. लेट अस डिवाइड. 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर वी गेट 3. नाउ हियर डेसिमल पॉइंट विल कम. सो ड्यू टू डेसिमल पॉइंट 0 ऐड होगा. सो 5 6 ज़ा 30 एंड द रिमाइंडर वी गेट 0. मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला. सो ये जो डेसिमल फॉर्म है 0.6 वो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग. कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग. सो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/5 इज टर्मिनेटिंग. कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है, बिकॉज द एडिशन वी गेट 0. सेकेंड एग्जाम्पल 2/11. So let us divide 2 by 11. So पहले तो यहाँ पे 0 आएगा, रिमाइंडर वी गेट 2. सो डेसिमल पॉइंट विल कम हियर, 0 यहाँ पे आएगा. 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर वी गेट 9. Then again this decimal point, due to this decimal point 0 will come here. So 11 8 ज़ा 88. Okay, remainder we get 2. अगेन ड्यू टू डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0 ऐड होगा. 11 1 ज़ा 11, सो यहाँ पे 11 आ गया. देन अगेन 9, 0 11 8 ज़ा 88, अगेन 2. दैट मीन्स एज यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे जो 18 है, यहाँ पे जो 18 है वो रिपीटेड है. अगेन यहाँ पे अगर रिमाइंडर 2 है सो वंस अगेन 0 यहाँ पे आएगा. देन 11 1 ज़ा 11, अगेन 8, अगेन 9 रिमाइंडर होगा. देन अगेन 11 8 ज़ा, मतलब 18 जो है वो रिपीटेड है. सो यहाँ पे 2/11 का डेसिमल फॉर्म हम लोग को क्या मिला, 0.1818 एंड सो ऑन. दैट इज इक्वल्स टू 0.18. और यहाँ पे डेसिबल, यहाँ पे बार होगा, वाई बार, बिकॉज 2 डिजिट्स आर रिपीटेड. सो यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल form of 2/11 is non-terminating. Why it is non-terminating? Because 18 is repeated. 18 is repeated, that's why it is non-terminating. Third example 29/16. That means we have to divide 29 by 16. सो यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 आएगा, रिमाइंडर वी गेट 3 एंड 1. डेसिमल पॉइंट है, 0 ऐड होगा. सो हियर 16 8 ज़ा 128, द रिमाइंडर वी गेट 2. अगेन 0 विल कम्स डाउन. 16 1 ज़ा 16, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 4 एंड यहाँ पे 0 होगा. 0 विल कम्स डाउन. 16 2 ज़ा 32, सो यहाँ पे 32 आएगा, रिमाइंडर विथ 8. सो नेक्स्ट 0, 16 5 ज़ा 80 एंड द रिमाइंडर वी गेट 0. मतलब यहाँ पे 29/16 का डेसिमल फॉर्म वी गेट 1/8125, विच इज़ terminating. Hence the decimal form of 29/16 is terminating. Why? Because at the end remainder we get 0. Fourth one example 17/125. So let us divide 17 by 125. So पहले तो यहाँ पे 0 का डिवीजन जाएगा, 0 then 17, डेसिमल पॉइंट 0 यहाँ पे आएगा. सो हियर 125 1 ज़ा 125, रिमाइंडर 5, यहाँ पे 5 अगेन 0, ड्यू टू डेसिमल पॉइंट 0 यहाँ पे ऐड होगा. नेक्स्ट 550 है. सो 125 4 ज़ा, यहाँ पे हम लोग को मिलता है 500, रिमाइंडर वी गेट 50. अगेन सिंस ड्यू टू डेसिमल पॉइंट 0 यहाँ पे आएगा. अगेन 125 4 ज़ा 500 एंड द रिमाइंडर यहाँ पे मिला 0. सिंस द रिमाइंडर 0,
मतलब यहाँ पे 17/125 का डेसिमल फॉर्म इज 0.144 विच इज़ टर्मिनेटिंग, जो आगे रिपीटेड नहीं हो रहा है. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन वी हैव 11/6. Let us divide 11 by 6. So here 6 ones are 6, remainder we get 5. डेसिमल पॉइंट आएगा 0, यहाँ पे ऐड होगा. यहाँ पे 6 8 ज़ा 48, रिमाइंडर वी गेट 2. 0 आएगा, 6 2 ज़ा 12, देन 4 आएगा, 0 यहाँ पे आएगा ड्यू टू डेसिमल पॉइंट. देन अगेन 6 6 ज़ा 36, अगेन 4 यहाँ पे रिमाइंडर, अगेन 0, 6 6 ज़ा 36, अगेन 4 रिमाइंडर, 0, 6 6 ज़ा 36, again remainder is 4. That means you can observe after 8 to 6 is repeated. मतलब 11/6 में जो डेसिमल फॉर्म है 1.82 एंड यहाँ पे 6 रिपीटेड है. ओनली 6 इज रिपीटेड, सो वी हैव टू राइट 1.82 एंड 6 के ऊपर डॉट. वाई? बिकॉज ओनली 6 इज रिपीटेड. नाउ ओनली 6, whichever number is repeated, that means it is non-terminating decimal form. Okay, now let us start with question number 2. Question number 2 is write the following rational numbers in decimal form. Given rational numbers को decimal form में लिखना है. So first is 127/200. First is 127/200. So let us divide. यहाँ पे आएगा 127 और यहाँ पे होगा 200. पहले तो 0 का डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर इज़ 127. डेसिमल पॉइंट है, 0 यहाँ पे आएगा. देन 200 5 सा 1000 होगा. सो हियर वी गेट 270 एज द रिमाइंडर. सिंस ड्यू टू डेसिमल पॉइंट 0 आएगा. देन यहाँ पे लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is given as write the following rational numbers in decimal form. Given rational numbers को decimal form में लिखना है. In that first question we have 127/200. It is divide 127 by 200. So यहाँ पे पहले 0 का डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर इज 127. Decimal point will come here. Due to that decimal point 0 will comes down. So यहाँ पे 0. 200 6 1200 है, remainder we get 70. Since due to decimal point 0 will comes down, 200 3 600 है, remainder is 100 only. 0 comes down, 200 5 1000 है and remainder we get 0. मतलब यहाँ पे 127/200 का डेसिमल फॉर्म वी गेट 0.635. यहाँ पे सिर्फ हम लोग को डेसिमल फॉर्म ही लिखना है. वी डोंट हैव टू क्लासीफाई वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सेकेंड एग्जाम्पल 25/900. लेट अस डिवाइड 25/900. सो यहाँ पे पहले तो 0 का डिवीजन जाएगा, वी गेट रिमाइंडर एज 25. डेसिमल पॉइंट आएगा, ड्यू टू दैट डेसिमल पॉइंट 0 विल कम्स हियर. सो हियर 250 हम लोग को मिला है. सो 99 2 यहाँ पे होगा 198 एंड द रिमाइंडर वी गेट 2. यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 6, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर वी गेट 2, here we get 5 and यहाँ पे 0 and due to the decimal point 0 will comes down. Then again 99 5 495, again remainder we get 5, यहाँ पे मिलेगा 2, here we get 0. decimal point की वजह से 0 यहाँ पे आएगा. again 99 2 198, again remainder we get 52, 0 यहाँ पे आएगा. again 99 5 495 एंड अगेन रिमाइंडर हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 25. मतलब इफ़ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे ये जो 25
यहाँ पे जो 25 है ये रिपीटेड है, मतलब 25/99 का डेसिमल फॉर्म आएगा 0.25 विच इज़ रिपीटेड. थर्ड क्वेश्चन 23/7. 23/7, that means we have to divide 23 by 7. So if we divide 7 3s are 21, remainder we get 2, decimal point 0 will comes here. ये डिविजन पार्ट हम लोग को पता है, डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 यहाँ पे आ जाता है. 7 2s are 14, remainder we get 6, again 0 will comes down. 7 8s are 56, सो यहाँ पे रिमाइंडर वी गेट 4. सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 आएगा. 7 5s are 35, अगेन रिमाइंडर 5, 0 आएगा. 7 7s are 49, रिमाइंडर 1, 0 यहाँ पे आएगा. 7 1s are 7, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 3, 0 विल कम्स डाउन. 7 4s are 28, ठीक है. सो अगेन रिमाइंडर 2, 0 यहाँ पे आएगा. 7 2s are 14, अगेन रिमाइंडर 6. 7 8s are 56, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 4. मतलब अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, यहाँ से जो है वो रिपीटेड हो रहा है. यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिला, अगेन वी गेट रिमाइंडर 6, अगेन वी गेट रिमाइंडर 4, है ना. मतलब ये जो नंबर्स है 2 8 5 7 1 4, these are the repeated. This group of digits are going to be repeated. These groups of digits are going to repeated. So यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा, hence 23/7 का डेसिमल फॉर्म इज 3.28571 which is going to repeated. This group of digit is going to repeated. Now next question we have 4/5. Fourth question we have 4/5. So let us divide 4 by 5. यहाँ पे पहले 0 का डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर वी गेट 4, डेसिमल पॉइंट 0 यहाँ पे आएगा. 5 8s are 40, रिमाइंडर 0. ईजी था, मतलब 4/5 का डेसिमल फॉर्म वी गेट 0.8 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव 17/8, मतलब वी हैव टू डिवाइड 17 by 8. So 8 2s are 16, we have remainder 1, decimal point 0 ऐड होगा. 8 1s are 8, remainder 2, again 0. 8 2s are 16, again 4. 8 5s are 40. So यहाँ पे डेसिमल फॉर्म क्या मिला, 17/8 is equals to 2.125. Question number 3 we have राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म. मतलब गिवन जो रैशनल नंबर्स है हम लोग को P/Q फॉर्म में लिखने हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है 0.6 डॉट, दैट मीन्स 6 इज रिपीटेड. सो ये लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट x इज इक्वल्स टू, और वी कैन टेक 0.6 इज इक्वल्स टू x, मतलब उसका जो P/Q फॉर्म है उसको हम लोग ने एज अ x कंसिडर कर दिया. नाउ सिंस ओनली वन डिजिट इज गोइंग टू रिपीटेड, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 10. सो यहाँ पे 0.6 डॉट इंटू 10 विच इक्वल्स टू 10x. 0.6 मतलब क्या है, 0.666 ऐसे आएगा. इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब वी गेट 6.66 विच इज़ रिपीटेड. सो यहाँ पे 6.6 डॉट विच इज़ इक्वल्स टू 10x. यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन, और यह 1 यहाँ पे 2. सो नेक्स्ट हम लोग को करना है इक्वेशन 2 माइनस 1. इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हियर वी गेट 6.6 डॉट
minus 0.6 which is equals to 10x minus x which is equals to 6 is equals to 9x। अभी ये 6 कैसे मिला? वी नो 6.666 है, उसको माइनस करेंगे 0.666 से तो क्या होगा? ये इसका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा एंड 6 माइनस 0 क्या मिलेगा? 6 ओनली। मतलब आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है? 6। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए? x का ही वैल्यू चाहिए। सो x को यहाँ पे रखेंगे। x के साथ क्या है? 9 है, उसको यहाँ पे भेज देंगे। 6/9 है, बट वी नो ये रिड्यूस हो सकता है 3 से डिवाइड करके। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू x। मतलब यहाँ पे 0.6 डॉट का p/q फॉर्म क्या मिला? 2/3। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 0.37 बार, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीटेड है। सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। लेट 0.37 bar is equals to x. Since 2 digits are repeated, so we are going to multiply by 100. So यहाँ पे 0.37 bar into 100 which is equals to 100x। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0.37 बार मतलब क्या है? 0.3737 एंड सो ऑन। उसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस आगे जाएगा, मतलब वी गेट 37.3737 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे आएगा 37.37 बार विच इज़ इक्वल्स टू 100x। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 minus 1, इक्वेशन 2 minus 1। ओके, सो यहाँ पे वी गेट 37.37 बार माइनस 0.37 बार विच इज़ इक्वल्स टू 100x माइनस x। दैट इज़ 37 इज इक्वल्स टू 99x। दैट इज़ वी गेट 37/99 इज इक्वल्स टू x। मतलब यहाँ पे 0.37 बार का वैल्यू हम लोग को मिला 37/99 विच इज़ द p/q फॉर्म ऑफ द 0.37 बार। क्वेश्चन नंबर 3, 3.17 बार। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 3.17 बार। So let us start with the solution. Let 3.17 bar is equals to x. Decimal form क्या consider किया? 3.7 bar. Now since 2 digits are repeated, so हम लोग किससे multiply करेंगे? 100 से। So let us multiply 3.17 bar into 100 is equals to 100x. So 3.17 बार मतलब क्या है? 3.1717 रिपीटेड है। ओके, सो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 प्लेस आगे जाएगा, 1 2। मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? 317, मतलब यहाँ पे आएगा। सो हियर वी हैव द डेसिमल पॉइंट 1717 रिपीटेड। मतलब यहाँ पे क्या मिला हम लोग को? 317.17 repeated is equals to 100x. Here 1 and here we have 2. Equation 2 minus 1. So यहाँ पे क्या मिलेगा? 317.17 repeated minus 3.17 repeated which is equals to 100x minus x. So यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ 317.17 रिपीटेड माइनस 3.17 रिपीटेड, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? ये हाँ, इसका सब्ट्रैक्शन विल गेट 0, डेसिमल पॉइंट 7 minus 3 is 4, 1 will be 1, 3 will be 1। मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वी गेट 314 विच इज़ इक्वल्स टू 99x। दैट इज़ x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला, ये 99 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा 314/99। सो यहाँ पे 3.17
17 बार का P अपॉन Q फॉर्म है 314 अपॉन 99। क्वेश्चन नंबर 4, 15.89 बार, 15.89 बार। Now start with the solution. Let 15.89 bar is equals to x। ठीक है, since 2 digits are repeated, इसको एक नंबर देते थे, 2 digits are repeated, so यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 15.89 बार मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 100x। सो यहाँ पे वी गेट 1589.89 बार विच इज़ इक्वल्स टू 100x। यहाँ पे ये क्यों आया? बिकॉज डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस आगे जाएगा। गिव योर इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 -1 होगा, हेंस 1589.89 बार माइनस 15.89 बार विच इज़ इक्वल्स टू 100x माइनस x। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वी गेट 0, यहाँ पे वी गेट 4, यहाँ पे वी गेट 7, 5 एंड 1। सो हेंस हम लोग को सब्ट्रैक्शन मिला 1574 इज इक्वल्स टू 99x। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू मिला हम लोग को 1574 अपॉन 99। सो हेंस 15.89 बार का P अपॉन Q फॉर्म है 1574 अपॉन 99। लास्ट क्वेश्चन 2.514 बार। लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। 2.514 बार इज इक्वल्स टू x। हियर इक्वेशन 1। सो यहाँ पे सिंस 3 डिजिट्स आर रिपीटेड, सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। सो यहाँ पे आएगा 2.514 बार मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 1000x। सो हेंस वी गेट 2514.514 बार which is equals to 1000x। here equation 2। equation 2 minus 1 करेंगे, so hence we get 2514.514 बार minus 2.514 बार which is equals to 1000x माइनस x। सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा? 2514.514 बार माइनस 2.541 बार विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 0 आएगा, 4 minus 2 is 2, 152। सो हेंस वी गेट 2512 इज इक्वल्स टू 999x। दैट इज़ यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू मिला 2512 अपॉन 999। सो हेंस 2.514 बार का P अपॉन Q फॉर्म इज 2512 अपॉन 999। Okay, I hope you understand all the examples with the solutions. If you want new videos for the new chapters, so please let me know in the comment section box, and if you really like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.